مرتبہ عباس مرتضی کی ہے تو دعا. بہت بہت شکریہ. حضرات یہ تھے جناب خون چندن پڑوی صاحب، جنہوں نے بہت اچھے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اشعار کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت قیمتی جملہ بھی کہا کہ مرتضی جعفری صاحب ایسے عالم دین تھے کہ جو سلام میں سبقت کیا کرتے تھے. بہرحال یہ سلام ایسی شے ہے کہ جس میں ہر شخص کو سبقت کرنا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو. اگر ہم اکڑے رہ جائیں کہ ہم سلام نہیں کریں گے تو یہ سمجھ جائیں کہ اس میں ہم خود اپنا لاس کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں اگر کوئی عالم ہے تو وہی سلام کرے، یہ نہ سوچیے، بلکہ جو سبقت کرے گا ثواب وہ زیادہ پائے گا. اور ہر شخص کو اپنی اپنی ایک کوالٹی بنا لینی چاہیے، اپنا یہ شعار بنا لینا چاہیے کہ ہم سبقت حاصل کریں. بعض ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ مولانا سلام کرے، تو یہ نہایت ہی گری بات ہے. آپ ان کا انتظار نہ کیجیے، نہ یہ ان کا انتظار کرے. جس کو وقت پہلے مل جائے وہ پہلے سلام کر لے. اس میں یہ کہیں سے نہیں جاتا کہ کسی مولانا کو آپ سلام کر دیں گے تو وہ مولانا چھوٹا ہو جائے گا، یا کوئی مولانا کسی کو سلام کر دے گا تو وہ مولانا چھوٹا ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام نے سب کے لیے جو قانون بنایا ہے وہ یہی ہے کہ جو پہلے سلام کرے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی حدیث، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک عالم دین جو ہے وہ کس کے وارث ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں. یہ حدیث آپ نے بارہ سنی ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ وارث انبیاء ہوتا ہے. تو یہاں سے استفادہ کرتے ہوئے میں یہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ جب حدیث نے یہ کہہ دیا کہ عالم جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر آپ ان کے سلام کا انتظار نہ کیجئے کہ وہ سلام آپ کو کریں. آپ خود یہ طے کیجئے کہ ہم بھی انہیں سلام کریں. اس عالم کی اپنی ذمہ داری ہے اور خود آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. دونوں اپنی اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اس لیے کہ ایک نہیں بلکہ دو عالم دین کے سارے ثواب کی مجلس ہو رہی ہے. اور میرا تو اپنا ماننا ہے کہ جب بھی کبھی عالم دین کی مجلس ہو تو اس میں کسی سرحد کی کوئی گنجائش ہونی ہی نہیں چاہیے، کسی کا نام ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ایک مجلس ایسی ہو کہ جو بنام عالم دین ہو. اس لیے کہ عالم دین جو ہوتا ہے وہ کسی محلے کا نہیں ہوتا، کسی گاؤں کا نہیں ہوتا، کسی شہر کا نہیں ہوتا ہے. اگر اس نے علم حاصل کیا ہے تو وہ کل کے کل جہان کا عالم ہوتا ہے اور ہر جگہ کی پیاس کو وہ بجھانے کی کوشش کرتا ہے. لہذا جب بھی کبھی آپ اصال ثواب کریں گے یا اسی مجلس میں اصال ثواب کریں گے تو جہاں آپ خصوصی طور پہ دو عالم دین کا تذکرہ کریں گے، اس میں کل اسلام کے جتنے بھی عالم دین جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ ان تمام عالم دین کو آپ اصال ثواب کریں گے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب علی رضا اشتر صاحب چندن پٹوی سے کہ وہ آئے اور نظر. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما
نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. آپ حضرات کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر خطیب ابوخری مولانا سید مرتضیٰ جعفری صاحب مرحوم ابن سید یوسف ہیں، مرحومہ سیدہ رضیہ خاتون بنت سید محمد حکیم صالح قاضی صاحب، لسان الواعظین مولانا سید مظاہر حجی صاحب قبلہ مرحوم، خطیب اعظم مولانا سید غلام فری صاحب قبلہ مرحوم، اور رئیس الواعظین مولانا سید قرار حسین صاحب قبلہ مرحوم، ان تمام مرحومین کو خیال کریں۔ ارباب ادا اور عزاداران سرکار سید الشہداء، آپ حضرات مسلسل پیغام متواتر مجالس میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ یہ مجلس منفرد انداز کی الگ نوعیت کی مجلس ہے، چونکہ 9:10 ہو چکے ہیں اور قصبات کی تہذیب اور تقاضوں سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں۔ چند گزارشات اور چند معروضات مختصر سے وقت میں آپ کی سماعتوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم و تصدق معصومین ہماری ذاکری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر عظیم کے ایک لفظ کا ثواب مرحومین کو ایصال کرے۔ بہرحال میرے لیے بہت سخت منزل ہے، حالانکہ میرا سفر ہی بہت ہمت شکن تھا، کیونکہ 4 دن قبل میں ابھی عمرے کے سفر سے واپس ہوا تھا، لیکن مولانا جعفری صاحب جو مشفق و محترم بزرگ تھے، ان کی قبر پر مجھے حاضری دینا ہی تھی، اور کئی سال سے یہ سفر ٹل بھی رہا تھا، میرا کافی اصرار ہوا کہ میں اتر تھا، تو ریزرویشن نہ ہوتے ہوئے بھی میں کسی طرح سے ایڈجسٹ کر کے میں حاضر ہوا ہوں، اور صبح کے لیے بھی دعا کیجیے کہ خطبہ ہو جائے۔ لیکن چونکہ خطیب ابوخری کی مجلس ہے لہذا مجھے آنا، اور ایک بڑا عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں کئی گھنٹے میں مرحوم کے قدموں میں بیٹھتا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو اس وقت کاروان تنظیم اپنے پورے شباب کا تھا، اور مرحوم خطیب ابوخری ہوں یا سرکار لسان الواعظین ہوں، کاروان تنظیم المکاتب کے اس تراول دستے میں تھے کہ جس نے کشمیر کی برفیلی وادیوں سے لے کے بنگال کی کھاڑیوں تک علم و عمل کے ایسے چراغ روشن کیے کہ صاحبان نظر کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ اور
मैं उसी हवाले से कुछ बातें अर्ज भी करूंगा, क्योंकि मैंने कहा ये अलग नौइयत की मजलिस है। देखिए, जगह जगह मकतब खोलना और तहरीर को आगे बढ़ाना बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। और सुबह जब मैं खतीब अब्करी के दरवाजे के करीब से गुजरा तो मैं उनके घर को गौर से देख रहा था कि ये उस खतीब का घर है, रिहाइश गाह है कि जिसने 40 मुल्कों का दौरा किया है पैगाम अहले बैत को पहुंचाने के लिए। मौलाना फरमान हुसैन साहब कुल्ला ताबसरा, इस बस्ती से उनका भी ताल्लुक था, बहुत से उलमा का ताल्लुक था, लेकिन तबलीग के हवाले से जितने सफ़र खतीब अब्करी ने किए हैं, और मैं आपके सामने अर्ज करूं, हालांकि आप लोग सब जानते हैं, लेकिन तमीज़ में मुझे कुछ ना कुछ रस्मन अर्ज ही करना है। खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर ने जो अपनी सवानें लिखी है, मुख्तसर सा किताबचा, उसमें उन्होंने जो कौम के हालात लिखे हैं ज़मींदारी के खात्मे के बाद, तो उसमें उन्होंने कहा था चूँकि ज़मींदारों की कमर टूट चुकी थी, हालात बेइंतहा खराब थे, तो उस वक्त चंद अफराद थे कि जो कौम के हालात को संभाले हुए थे और सहारा दिए हुए थे, और उन चंद मजलिस पढ़ने वालों में जो जगह जगह जाके मजलिसों को कायम करके मजलिसें पढ़ते थे ताकि कौम का जो मियार था वो बरकरार रहे और उसी तरह से मॉरल डाउन ना हो, उसमें खतीब अब्करी भी थे। उन्होंने खुद लिखा है, बुजुर्ग खुतबा के साथ 2 नौजवान खतीब, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, लिसानुल वाइज़ीन और एक खतीब अब्करी। और मैं आपके सामने अर्ज करूं, देखिए कितने नफीस किस्म के आदमी थे, नाम ही अब्करी था। और आजकल का मसला अलग है कि खुदनुमाई का जज्बा इतना पैदा हो गया है कि नए अदीब पुराने खिताब मांगते हैं। उस ज़माने में जो अलकाबात दिए जाते थे, देखिए मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना नदीम साहब और तमाम उलमा यहाँ तशरीफ फरमा हैं, ये सब अच्छी तरह जानते हैं उस ज़माने में जो अलकाबात दिए जाते थे, जो खिताबात दिए जाते थे, वो बुजुर्ग उलमा की तरफ से होते थे, चाहे वो लिसानुल वाइज़ीन हो या खतीब अब्करी हो। लखनऊ में उलमा बैठ के इंतखाब करते थे। अब्करी, आप लुगत जाके देखिएगा, अब्करी के माने ही नफीस के हैं, अब्करी के माने ही उस शख्सियत के हैं कि जिसमें मुख्तलिफ सलाहियतें, नुमाया सलाहियतें पाई जाती हूँ। और मुर्तज़ा जाफरी साहब उन सलाहियतों के हामिल थे। अब मैं एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कहाँ से इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ। मैं बचपन में, हम लोग जब किताबों में पढ़ते थे तो उसमें एक वाक़या हम देखा करते थे। उस वाक़या इस तरह का था कि हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, कहा इस कब्रिस्तान से तेजी से निकल चलो। कहा क्यों? कहा कि इसमें कब्र के ऊपर अजाब नाज़िल हो रहा है। और जब वापस आए असहाब के साथ, कहा उसी कब्र के पास अब ठहर जाओ। तो असहाब ने पूछा कि सरकार इतना बताइए कि अभी आपने हुक्म दिया था जब जा रहे थे कि तेजी से निकल चलो, अब उसी कब्र के करीब ठहरने का हुक्म दे रहे हैं। का उस वक्त अजाब नाजिल हो रहा था, अब सवाब नाजिल हो रहा है, अब रहमतें नाजिल हो रही हैं। इस ज़हानतें ज़ेरे नंबर परवान चढ़ी हैं, आप लोग पहुंच गए। का अजाब क्यों नाजिल हो रहा था, रहमत क्यों नाजिल हो रही है? का उस वक्त अजाब के फरिश्ते इस कब्र के ऊपर थे और अब रहमत इस वजह से नाजिल हो रही है क्योंकि इसका बेटा घर में बैठ के कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। बहुत तवज्जो। तो अजीजों सुनिए, अगर किसी का एक बेटा कुरान की तिलावत करे घर में बैठ के, तो उसकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल होता है, उसकी कब्र नूरानी हो जाती है, उसकी कब्र पर रहमतें नाजिल होने लगती हैं। चाहे वो लिसानुल वाइज़ीन हो, चाहे वो खतीब अब्करी हो, चाहे वो खतीब आज़म हो। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक मकतबों में इतने बच्चों को छोड़ा है कि हजारों बच्चे रोज कुरान भी पढ़ते हैं, तिलावत भी किया करते हैं। अच्छा, बात उलमा की हो रही थी, इसी जहर से 2 मिनट में और आपके सामने गुफ्तगू अर्ज करूंगा। मैं उलमा की बात हो रही थी, उलमा को पहचाना कैसे जाता है, उलमा को किस तरह से पहचाना जाएगा? तो मुझे ये बताइए, किसी भी चीज को पहचानने का पैमाना क्या है? रंगो रूप
नमक आप कैसे पहचानेंगे ये नमक है? सामने एक सफेद रंग का ढेर लगा हुआ है, आप उसको कहिए कि ये नमक है, जब तक आप उसकी तुरशी महसूस नहीं करेंगे ये नहीं कह सकते कि ये नमक है। इसी तरह से शक्कर या कोई भी चीज उस वक्त तक महसूस नहीं हो सकती जब तक कि उसके जायके को एहसास न किया जाए। जायके का एहसास न किया जाए तो जायके से पता चलता है कि ये है क्या। बहुत तवज्जो, जाहिरी लिबास को देखकर, शेरवानियों को देखकर, टोपियों को देखकर, अमामों को देखकर, अबाओं को देखकर, कबाओं को देख के ये अंदाजा न लगाइए कि ये हकीकी आलिम है या नहीं। बहुत तवज्जो, उलमा की पहचान कैसे होगी अजीजों? उलमा की पहचान होगी उनके इल्म से, उनके किरदार से। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, उलमा की पहचान इल्म से और किरदार से हुआ करती है। खतीब आजम के कारवां में या कारवाने तंजीम में ऐसे ऐसे अफराद थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को मनवाया भी और इल्म अमल के ऐसे चराग रोशन किए कि कल भी खुशबू रोशन थी, आज भी रोशन है, कयामत तक रोशन होने वाली है। कयामत तक वो खुशबू लोग महसूस करते रहेंगे। अजीजों, ये अबकरी शख्सियतें, ये हजरात उलमा, ये मुजाहिदीन और ये मिल्लत के लिए कुर्बानियां देने वाले और खिदमत अंजाम देने वाले, ये खत्म होने वाली शख्सियतें नहीं हैं। मैं खतीब अबकरी ही का एक जुमला जो उन्होंने लखनऊ की मजलिस में पढ़ा था वो मेरे जहन में आज भी महफूज है। तालिबान 2003 में एक मजलिस पढ़ते हुए की साले सवाब की मुर्तजा जाफरी साहब ने एक जुमला कहा था मरहूम ने कि वो और होते हैं जो मर जाया करते हैं। बहुत तवज्जो, वो और होते हैं जो मर जाया करते हैं, हम वो हैं जो मर के जाया करते हैं। मर जाना और होता है, मर के जाना और होता है। सलावत भेजने मोहम्मद, ये हमेशा जिंदा रहने वाली शख्सियतें हैं, चाहे वो मौलाना फरमान अली साहब हों, चाहे खतीब आदम मौलाना गुलाम अस्करी साहब हों, चाहे वो खतीब अबकरी मुर्तजा जाफरी साहब हों, चाहे लिसानुल वाइज़ीन मौलाना मुजाहिद अली साहब क़िबला हों, चाहे रईसुल वाइज़ीन मौलाना कर्रार हुसैन ताबासरा हों। कितनी खिदमतें इन लोगों ने अंजाम दी है, आप अंदाजा लगाइए। बहुत तवज्जो, ये हकीकी आलिम थे, आलिम बाअमल थे। बहुत तवज्जो, किसी बस्ती में अगर कोई आलिम खामोशी से जिंदगी भी गुजारे तो उस बस्ती वालों का वो मुअल्लिम होता है, चूंकि उसके चलने के अंदाज को देख के, उसके बैठने के अंदाज को देख के, उसके लिबास के अंदाज को देख के, उसके नोशो खुर्द के अंदाज को देख के, उसके मुस्कुराने के अंदाज को देख के, गुफ्तगू के अंदाज को देख के लोग बहुत कुछ हासिल किया करते हैं। वो खामोश रहता है लेकिन तबलीग होती रहती है। तो जब खामोश होना का ये मर्तबा है तो खतीब अबकरी, लिसानुल वाइज़ीन, रईसुल वाइज़ीन ये वो उलमा थे कि जिन्होंने जगह जगह अपनी तकरीरों के जरिए, तहरीरों के जरिए कौम की वो खिदमत की है कि ये कल भी जिंदा रहेंगे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहने वाले हैं। सलावत भेजना इंसान की कीमत काहे से है? डेनमार्क में क़िबला इसी अंदाज से गुफ्तगू हो रही है, 2-3 मिनट और मैं कर लूं। डेनमार्क में कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस का उन्वान था कि इंसान की कीमत क्या है। तो वहां जितने भी स्कॉलर्स थे वेस्टर्न कंट्रीज के, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के, सबने अपने अपने अंदाज से गुफ्तगू और मकालात पेश करना शुरू किए। किसी ने कहा इंसान की कीमत उसकी दौलत से है, किसी ने कहा इंसान की कीमत इख्तिदार से है, किसी ने कहा इंसान की कीमत इल्म से है। हमारे यहाँ ईरान के एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, आगाए तकी जाफरी मुस्तहद, नहजुल बलागा का दर्स देते थे, इंतकाल हो गए। इत्तफाक से वो भी ईरान की नुमाइंदगी कर रहे थे उस सेमिनार में, उस कॉन्फ्रेंस में। वो जब तकरीर करने के लिए गए तो उन्होंने तमहीद में इस तरह की बातें पेश की कि अभी मेरे सामने लोगों ने अलग अलग अंदाज से इंसान की कीमत के बारे में बताया।
کہ انسان کی قیمت کاہے سے ہے. انسان کی قیمت کسی نے دولت کے ذریعے, کسی نے اقتدار کے ذریعے, کسی نے جاہ و حشم کے ذریعے, کسی نے حزم و تفنگ کے ذریعے, کسی نے قبائلی نظام کے ذریعے, کسی نے افرادی قوت کے ذریعے انسان کی قیمت کو واضح کیا. لیکن آج میں بتاتا ہوں کہ انسان کی قیمت اس کے اعمال سے ہے. بہت توجہ. دو جملے کہے, ایک یہ کہ انسان اپنی قیمت خود جانتا ہے, دوسرے یہ کہ انسان کی قیمت اس کے اعمال سے ہے. اپنے وجود کے جو اعمال سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, مثلا انسان خدمت کے دائرے کو بڑھاتا جاتا ہے, اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. کسی نے اگر کوئی سبیل لگا دی تو اس کے حساب سے اس کی قیمت ہوگی. کسی نے لوگوں کی خدمت کے لیے جگہ جگہ کنویں کھود دیے تو اس کی قیمت اس کے اعتبار سے ہوگی. کسی نے بچوں کے لیے مکتب کھول دیا تو اس کی قیمت اس کے اعتبار سے ہوگی. کسی نے اس سے آگے بڑھ کے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کھول دی تو اس کی قیمت اس کے اعتبار سے ہوگی. جیسے جیسے انسان کے اعمال کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اب جو آقائے تقی جعفری نے یہ فلسفہ اور یہ فکر پیش کی تو جتنے بھی ویسٹرن یونیورسٹیز کے اسکالر اور پروفیسر تھے سب اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد سب نے تالیاں بجانا شروع کی اور کافی دیر تک تالیاں بجاتے رہے. آقائے تقی جعفری مرحوم اپنا مقالہ مکمل کر کے اپنی نشست پر بیٹھ چکے تھے, لیکن وہ لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے رہے اور انہوں نے کہا دیکھو یہ صحیح فکر پیش کی ہے کہ انسان کی قیمت اس کے اعمال سے ہوتی ہے. جب وہ لوگ کافی دیر تک تالیاں بجاتے رہے تو آقائے تقی جعفری پھر سے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا سنو, یہ جو میں نے تمہارے سامنے فلسفہ اور فکر پیش کی ہے یہ تمہیں نہیں معلوم یہ کس کی فکر ہے. یہ میری فکر نہیں ہے بلکہ یہ اس کی فکر ہے کہ جس نے 4.5 سالہ حکومت کے دوران دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے, اقتدار کیسے کیا جاتا ہے. صلوات ہے محمد. تو انسان کی قیمت اس کے اعمال کے اعتبار سے آگے بڑھتی رہتی ہے. کاروان تنظیم کیا اہمیت ہوگی ان کی, بہت توجہ. کوئی قلعہ کوئی محل نہیں بنایا لیکن اتنے محل تعمیر کر دیے, اپنی قبر کو اتنا نورانی بنا دیا کہ جن کیفیتوں کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اب 2-3 جملے سن لیجیے. اور اسی وجہ سے پروردگار نے کہا تھا عبدی کلی اقل, اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. بہت توجہ. دیکھیے میں یہاں حاضر ہوا تو مجھ سے کسی نے کہا کہ بہت خاموشی سے اور بڑی سنجیدگی سے یہاں کے لوگ سنا کرتے ہیں, لہذا میں بھی سنجیدگی سے سنا رہا ہوں, لیکن 2-3 جملے ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا. پروردگار نے کہا میرے بندے تو میرا ہو جا ہم تیرے ہو جائیں گے. پروردگار صحیح ہے, تو نے کہا کہ تو میرا ہو جا ہم تیرے ہو جائیں گے. تو نے آنکھیں دی ہے تیرے لیے, زبان دی ہے تیرے لیے, یہ کائنات جسم دی ہے تیرے لیے, تو نے یہ ٹانگیں دی ہیں, تو نے جہاں کہا وہی جائیں گے, ہاتھ دیے ہیں جو کہا وہی کریں گے, آنکھیں دی ہیں جو دیکھنے کے لیے کہا وہی دیکھیں گے, زبان دی ہے جہاں چلانے کے لیے کہا وہی چلائیں گے. لیکن اتنا تو بتا دے ہم تو تیرے ہو جائیں گے, یہ کائنات جسم تیرے سپرد کر دیں گے, لیکن تو ہمارا کیسے ہوگا؟ عجب نہیں وہ ابدی ہو, ازلی ہو, سرمدی ہو, سمدی خالق آواز دے, نادان ہو, جانتے نہیں ہو. جب تم اس کائنات جسم کو میرے سپرد کر دو گے تو میں تمہارا اس طرح سے ہو جاؤں گا, آنکھیں تمہاری ہوں گی, بینائی میری ہوگی, دل تمہارا ہوگا, دھڑکن میری ہوگی, جسم تمہارا ہوگا, قوت و طاقت میری ہوگی. اب میں کیا کروں؟ مجھے پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا ملا ہی نہیں جو کلی طور پر اس کا ہوا ہو, اور جو بندہ کلی طور پر اس کا ہوا اس کی آنکھوں کو دیکھا عین اللہ کہا گیا, زبان کو دیکھا لسان اللہ کہا گیا. اس سے بہتر صلوات ارشاد فرمائیں. میں تنظیم کے اصالِ ثواب کی
मजलिस है, मैं भी उसी अंदाज से पढ़ रहा हूँ। और हमारी कौम तो आदी हो चुकी है नमक मिर्च की, लेकिन 2-3 जुमले मैं आपके सामने अर्ज करूँ, कितनी खिदमत की है। परवरदिगार ने कहा तुम मेरे हो जाओ, हम तुम्हारे हो जाएंगे। ये सब वो शख्सियतों थी कि जिन्होंने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया था। बहुत तवज्जो। एक बड़े खतीब हैं, नाम नहीं लूंगा, देखिए इब्राहिम साहब, ये सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई सब बैठे हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये बताइए कि आज के दौर में, इस अहद में, ये लोग उस तरह की शख्सियतें क्यों नहीं बन पा रही हैं जैसे पहले शख्सियतों का मियार होता था। रईसुल वाइज़ीन नाम आया फौरन कर्रार साहब की किताब, खतीब अबकरी मुर्तज़ा जाफरी साहब, लिसानुल वाइज़ीन मौलाना मज़ाहिर साहब, खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब, खतीब आज़म मौलाना गुलाम अस्करी साहब ताबसरा, ये सब नाम फौरन कौंधते थे, बिजली सी कौंधती थी। तो फौरन मेरे बराबर में एक साहब खड़े हुए थे, उन्होंने जवाब दिया जो सवाल कर रहे थे कि इस ज़माने में जो चाहिए था वो इस ज़माने की कौम दे रही है, और उस ज़माने में तो उन्होंने खिदमत की, कौम ने उसके एतबार से उन्हें इनामत दी, इज्जत दी, इकराम दिया। वो खिताबात, वो अल्ताबात, वो शख्सियतें, वो शख्सियतों का घेराव और वो कैफियत वो आज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके आज लाहियत इस कमाल का थी। मैं आपके सामने अर्ज करूँ, देखिए कर्रार साहब का नाम ही है, बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूँ। मौलाना रईसुल वाइज़ीन कर्रार हुसैन ताबसरा मौलाना मज़ाहिर साहब के रिहाइशगाह थे। मेरी आंखें खुली हैं तंजीम में। मैं बहुत छोटा था तो इन लोगों के साथ कॉन्फ्रेंसों में भी जाया करता था, इनकी खिदमत में देखता था। तो उस ज़माने में तंजीम में कुछ इधर उधर की बातें चल रही थी और सरकार रईसुल वाइज़ीन ने जाफरी साहब बराबर में बैठे हुए थे। तहसील के एक मुलाजिम थे जो डिपार्टमेंट देखते थे, गालिबन इक़्तिसादियात अपना काम किया है, ज़बान से काम किया है। मैं आपके रोकते हुए लफ्ज़ों को, अल्लामा मेडसी का नाम आपने अच्छी तरह से सुना है। अल्लामा मेडसी ऐसे ही मेडसी नहीं बन गए। मैं उनकी सवालें पढ़ रहा था तो जब ये गहवारे में थे तो इनके वालिद अल्लामा तकी मेडसी गालिबन नाम है, वो नमाज शब में मसरूफ थे। नमाज शब की कैफियत ये होती है जब इंसान बंदगी में कमाल पर पहुंचने लगता है और इबादतों में उसे चाशनी और मजा आने लगता है। मुसल्ले पर बैठ के उसके यहाँ आंसुओं की कैफियत पैदा हो जाती है। तो कभी कभी पर्दे खुल जाया करते हैं, वाह हो जाया करते। ऐसे में नमाज शब पढ़ते वक्त उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई पुकार के कह रहा है, तकी मजलिसी जो मांगना हो आज मांग लो। अब बहुत गौर से सुनिएगा, तकी मजलिसी जो मांगना हो वो मांग लो। अब नमाज पढ़ते पढ़ते मुसल्ले पर आंसुओं के दरमियान इन्होंने सोचना शुरू किया, जब परवरदिगार आवाज ही दे रहा है तो मैं मांगूं, लेकिन मांगने का सलीका सिखाया। इन्होंने सोचा मैं दौलत मांग लूं, 7 नस्लों के काम आएगी, हुकूमत मांग लूं, इख्तिदार मांग लूं, जाहो हशम मांग लूं, पैसा मांग लूं, जमीन मांग लूं, जायदाद मांग लूं। लेकिन जो बात इनके जहन में आती थी फौरन ये सोचते थे दौलत खत्म होने वाली चीज है, पैसा खत्म होने वाली चीज है, इख्तिदार खत्म होने वाली चीज है, जाहो हशम खत्म होने वाली चीज है, हुकूमत खत्म होने वाली चीज है। फौरन ये बातें सोच ही रहे थे कि अचानक इनके बेटे अल्लामा मजलिसी उन्होंने गहवारे में रोना शुरू किया। तो अचानक इनका जहन अपने बेटे की तरफ गया। बारगाह परवरदिगार में हाथों को बुलंद करके कहा, ए परवरदिगार, मुझे ना दौलत चाहिए, ना हुकूमत चाहिए, ना इख्तिदार चाहिए, तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का मेरे बेटे को नासिरे अहले बैत बना दिया। मेरे बेटे को नासिरे अहले बैत बना दे। अब नासिरे अहले बैत मांगा था तो परवरदिगार ने दुआ को कबूल किया। अल्लामा मजलिसी अगर दौलत मांगते तो खत्म हो जाती, लेकिन अल्लामा मजलिसी का कमाल ये है उन्होंने इतनी किताबें लिख दी कि हम पढ़ नहीं सकते। बहुत तवज्जो। और उन किताबों की वजह से वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। सलावत। 1
बेहतर इरशाद। मेरे बंदे तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। परवरदिगार ने आवाज, एक बंदा ऐसा मिला जो कुल्ली तौर पर उसका हुआ हो। अब एक मुकालिमा जो बहुत पढ़ा जाता है और किताबों में भी मौजूद है, साहिब अब्बास ने भी लिखा है कि मौला अली, देखिए मजलिसें हम सुनते रहते हैं, मैं अर्ज कर रहा था, लेकिन कभी आपने सोचा कि मजलिसों का असर क्यों नहीं होता? मैं जौहरी मोहल्ले में तकरीबन 10 साल रहा। वहाँ के लोग कहते थे कि जिस जमाने में कारवानी तंजीम का पैमा जौहरी मोहल्ला होता था, उस जमाने में यहाँ का अंदाज ही बदल गया, कैफियत ही बदल गई थी। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, यानी जमान में असर। सरकार खतीब आजम मरहूम कहा करते थे कि पहले अपने आप को बदलो फिर तबलीग करना। बहुत समझ। आज कितनी मजलिसें होती हैं साल भर में? मुझे बताइए मजलिसों का असर क्यों नहीं होता? क्यों ज़मीर और विजदान में इनकलाबी कैफियत पैदा नहीं होती? क्यों आखिर कोई हुर नहीं बनता? क्यों इंसान अपनी तबीयत में इनकलाब को नहीं लाता? बहुत तवज्जो। आज है क्या कैफियत? अय्याम अदा से पहले क्लिप आपने सुनी होगी, बहुत मशहूर हुई थी। उसमें एक साहब तकरीर करते हुए फरमा रहे थे कि जब पहले हमारे बचपन में मुहर्रम होते थे तो नए कपड़े नहीं सिलवाए जाते थे, पुराने कपड़ों पर रंग किया जाता था, एक रूहानी कैफियत होती थी। महीना भर पहले से अदादारी का एहतमाम होता था। जो पुराने कपड़े होते थे उन्हें काले और हरे रंग से बुजुर्ग रंगते थे और उसके बाद वो पहनाते थे। कहीं ऐसा न हो कि नए लिबास का शायबा भी जहन में हो कि हम अय्याम अज़ा में नया लिबास पहन रहे हैं। आज क्या कैफियत है? अज़ाए फातिमिया अभी मजलिसें आने वाली हैं, कैफियतें पैदा होने वाली हैं। अय्याम अज़ा देखिए, आप जाइए मुहर्रम में मार्केट में, आप जब तशरीफ ले जाएंगे तो दुकानदार कहेंगे कि मुहर्रम के मतलब का कपड़ा आ गया, मुहर्रम स्पेशल सूट आ गए हैं, आप खरीद लीजिए। अजीजों, कल पुराने कपड़ों पर रंगो रोगन करके पहना जाता था, आज जिधर देखिए लिबास बदले जा रहे हैं। याद रखिएगा, अदादारी लिबास बदलने का नाम नहीं है, अदादारी किरदार बदलने का नाम है। सलाम भेजने मोहम्मद और हमारे इन उलमा ने उसी किरदार साजी को आगे बढ़ाया। अभी मौलाना नदीम साहब ने कहा कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। वारिस, अंबिया का वारिस, कौम को तामीर करने वाले। मुझसे कोई कहे कि अंबिया की सहीफे बताइए, आप बता सकते हैं? मुझे बताइए इमाम अली ने कितनी किताबें लिखी हैं, कितनी किताबें तहरीर फरमाई हैं? इमाम की किसी किताब का नाम आपको याद है? बताइए। बच्चों से पूछिए, कह देते हैं नहजुल बलागा। नहजुल बलागा इमाम की किताब का नाम नहीं है, कशकोल जनाब रजी का नाम है। सैयद रजी ने इमाम अली के मकतूबा, खुतबा, कलमाते क़िसार को जमा किया, एक किताब को मुरत्तब किया, उसका नाम रखा नहजुल बलागा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इमाम अली की किताब कहाँ है, किताबें तो नहीं लिखी, तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, इमाम अली ने किताबें छोड़ी हैं, लेकिन इमाम अली ने खामोश किताबें नहीं छोड़ी हैं, बोलती हुई किताबें छोड़ी हैं। इमाम अली की किताब का नाम है सलमान फारसी, इमाम अली की किताब का नाम है उमर बिन हफ्फ, इमाम अली की किताब का नाम है मीज़ान तम्मार। किरदार साजिद की है मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, अंबिया अलैहिस्सलाम ने किरदारों को तामीर किया। बहुत तवज्जो। और यही वजह थी कुमैल, जानते हैं, आज हम सबकी तमन्ना है, मैंने अर्ज किया, मैं दूसरे अल्लाह से मजलिस पढ़ रहा हूँ कि रोजे पर पहुंच जाएं, बारगाह मशहद में पहुंच जाएं, इमाम अली के दरबार में पहुंच जाएं, करबला मल्ला। हर शिया की तमन्ना सिर्फ यही है कि जिंदगी में एक बार मौला के रोजे तक रसाई हो जाए। अच्छा, जब हम जाते हैं तो वहां क्या मिलता है?
मौला की ज़ियारत होती है? नहीं, मौला की कब्र से मस होने वाली जरी की ज़ियारत होती है। बहुत आप ये बताइए कि जब उस्मान जुल्म गले में बांधी गई थी उस वक्त कहाँ थे सलमान फारसी, कहाँ थे अबू ज़र ग़फ़ारी, कहाँ थे अम्मार, कहाँ थे बिलाल हबशी, कहाँ थे चाहने वाले, कहाँ थे जाने साहब? पूछिए उनसे, उन्होंने तलवार क्यों नहीं निकाली? सलमान फारसी 10 दर्जे का ईमान लिए बैठे हो, तलवार निकाल लेना चाहिए थी। सलमान आवाज देंगे, नादान हो, जानते नहीं हो, किरदार अपने जज्बात की बुनियाद पर नहीं बनता है, इमामत के जश्न और अबरू के इशारे पर बनता है। अगर तलवार निकालने की बात थी तो जुल्फ़िकार को जंग थोड़ी लग गई थी, फिर निकाली क्यों नहीं? तुम तो इंसान थे, निकाल लेते। जब गले में जुल्म की रस्सी पड़ी हुई थी, कहा तुम्हें नहीं मालूम इमाम का इशारा क्या था? हम वो देख रहे थे। और अगर दलील चाहिए तो आइए जंगे सिफ़ीन में ऐसे मौके पर जब तलवारों से तलवारें टकरा रही थी, तीरों से तीर टकरा रहे थे, घोड़े के पैरों से चिंगारियां निकल रही थी, ऐसे हालत में अली की फौज का कमांडर मालिक अश्तर घोड़े को कांपता देख के दुश्मन इस्लाम के खैमे के करीब पहुंच के तनाबे खैमा के काट के तलवार को उठाता है कि अनकरीब दुश्मन इस्लाम को खत्म कर दे। पीछे से एक आवाज आती है, मालिक बस। अब जो ये आवाज आई तो जितनी तेजी से तलवार उठी थी उसी तेजी से तलवार रुक गई। मैं कहूंगा मालिक अश्तर ये तुमने क्या किया? तुम्हें हमला कर देना चाहिए था, इमाम से माफी मांग लेते। कहा सुनो, इमाम ने रोका था, मैं रुक गया। अगर मैं दुश्मन को कत्ल कर देता दुनिया मुझे बहादुर कहती, सूरमा कहती, साबत कहती, दिलेर कहती, शजा कहती, दुनिया तो सब कुछ कहती, लेकिन अकलील मकरमत का सुल्तान मेरा मौला ये ना कहता जिस तरह मैं रसूल के लिए हूं, मालिक अश्तर मेरे लिए है। किरदार इमामत के इशारों पर तामीर होता है, किस्मत के इशारों पर तामीर होता है। और इसी वजह से कुमैल नखलिस्तान में खड़े हुए हैं जनाब कुमैल को लेकर। कुमैल कूफे वालों का सर्फ इस लायक नहीं है कि इन बातों को बर्दाश्त कर सके। आओ मेरे साथ। कहा मौला मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। कहा क्या सवाल है तुम्हारा? कहा मौला ये बताइए कि इन्नल इंसान लफीकुन, इंसान घाटे में है। मौला ने मुस्कुरा के कहा इल्लल लज़ीना आमनू, जो साहिब ईमान है वो घाटे में नहीं है। कहा मौला ये तो बताइए साहिब ईमान कौन है? कहा कुमैल भूल गए मस्जिद नबवी में असहाब के छलकते हुए मजमे में पैगंबर आदम ने मेरे बाजू पर हाथ रख के कहा था या अली बका तकवा और ईमान है। अली तुम्हारी मोहब्बत तकवा है और ईमान है। का मौला फिर इतना बता दीजिए आपकी मोहब्बत की अलामत क्या? यहीं तक आपके जहनों को लाना चाहता था। अली मेरा मौला इतना बता दीजिए आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? अब एक मर्तबा मौला ने अपने साथी को, अपने दोस्त को, अपने चाहने वाले को, अपने जानेसार कुमैल को आंखों में आंखें डाल के देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा, कुमैल सुनो, मेरा चाहने वाला हिजाज में हो या ताइफ में, मक्के में हो या मदीने में, बसरे में हो या कूफे में, इस दौर के हिसाब से तर्जुमा करूं का कुमैल मेरा चाहने वाला चंदन पट्टी में हो या फिर छपरा में, सेठल में हो या दिल्ली में, लखनऊ में हो या कलकत्ता में, कुमैल मेरा चाहने वाला जहां भी होगा, जिस इलाके में होगा, जिस कबीले में होगा, जिस खानदान में होगा, अगर मेरा है तो वो लुटाने का मिजाज रखेगा, लूटने का मिजाज नहीं रखेगा।
सरकार रईसुल वाहिदीन का एक जुमला मैं आपके सामने अर्ज करूं, वो भी इस मजलिस में शामिल है। सरकार रईसुल वाहिदीन पढ़ा करते थे इस मौके पर कि दुनिया वालों ने अहले बैत से सब कुछ छीना, हक छीना, बात छीना, हुकूमत छीन ली, जाहिरी ताकत छीना, लेकिन सब कुछ छीनने के बाद मदीने का कोई मुअर्रिख ये हिम्मत न कर सका कि मदीने की तारीख लिखते वक्त ये लिख दे कि मदीने का कोई भी साहिल सिवाय दर अली के किसी और दरवाजे पर चला गया हो। बड़ी आसानी से सुन लिया, मेरा जुमला नहीं है, सरकार रईसुल वाहिदीन का जुमला है। अब कैसे सुनते हैं ये आप सोचिए। सरकार रईसुल वाहिदीन पढ़ते थे कि मदीने की तारीख लिखते वक्त कोई भी मुअर्रिख ये न लिख सका कि मदीने का कोई फकीर, कोई साहिल सिवाय दर अली के किसी और दरवाजे पर चला गया हो। अब उनके मिजाज का जुमला सुनाऊं तो वो आखिर में पढ़ते थे, सरकार रईसुल वाहिदीन कहते थे कि ये मुअर्रिखीन ने ये क्यों नहीं लिखा कि फला 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 के दरवाजे पर चले गए, क्यों? क्योंकि मदीने के साहिल भी जानते थे मदीने में ज़कात लूटने वाला कौन है, लुटाने वाला कौन है। सलाम अलैकुम। अच्छा, उसके बाद जनाब कुबैल ने पूछा कि मौला इसको बताइए आपकी मोहब्बत की और अलामत क्या है? का तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा। तो यही बात आपको किए दे रहा, अल्लाह के ऊपर भरोसा, किसी और पर भरोसा नहीं, किसी और ताकत पर भरोसा नहीं। जनाब मीसक को मौला ने वो उलूम सिखा दिए थे जो गैब के बारे में वो जानते थे। अब उलमा तशरीफ फरमाए, जब जनाब मुख्तार टकराए हैं अंधेरे खाने में जनाब मीसम से कूफे में, तो टकराने के बाद एक मर्तबा का मैं मुख्तार, मीसम ने कलेजे से लगा दिया का मुख्तार तुमसे बड़ा काम लिया जाए और उस वक्त तक तुम दर्जा शहादत पर फाइज नहीं होगे जब तुम अहले बैत और करबला के कातिलों से बदला न ले लो, इंतकाम न ले लो। कैसे पता? था मेरे मौला ने मुझे बताया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि इब्ने ज़ियाद की तरफ से ये पैगाम आया कि मुख्तार को फांसी दी जाएगी। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं। अब जो फांसी का आर्डर हुक्म मुख्तार को मिला तो मुख्तार सीधे ढूंढते हुए मीसम के पास गए। कब मीसम मुस्कुराते हुए कहा, आपने तो ये कहा था, मौला ने ये फरमाया है, मेरे पास ये आर्डर आ गया, ये हुक्म आ गया। हंस के चूमा का मैं दर्जा शहादत पर फाइल होने जा रहा हूं अहले बैत की मोहब्बत में। फिर मर्तबा मीसम ने मुख्तार की तरफ देख के कहा, इब्ने ज़ियाद कोई भी आर्डर करे होगा वही जो मेरे मौला ने कहा है। अरकान हुकूमत, अरबाब हुकूमत सब सामने बैठे हुए हैं। मीसम को उस जगह पर ले जाया जा रहा है जहां जल्लाद उनको कत्ल करेगा। पैरों में जंजीरें, हाथों में हथकड़ियां, गले में जंजीरें पड़ी हुई हैं। ऐसे में अली का तरबियत याफ्ता शेर, जंजीरों में जकड़ा हुआ शेर, शान बेनियाजी से अपने मक्तल की तरफ जा रहा है और मीसम को देख के कह रहा है, क्यों मीसम? हे भाई मीसम, अब क्या कहते हो? अब मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। अचानक शाम की तरफ से घोड़ों का एक काफिला रुका। एक शख्स ने पुकार के कहा, इब्ने ज़ियाद क्या कर रहा है? कहा तुम भी आओ, मुख्तार के कत्ल का मंजर रोक देखो। कहा रोक दे जल्लाद को, मरकज का हुक्म है, विफाक का हुक्म है, सेंट्रल से ये हुक्म आया है यजीद की हुकूमत से कि मुख्तार को आजाद कर दिया जाए। इब्ने ज़ियाद झल्ला गया, उठा, पसीने को पोंछा और उसके बाद मुख्तार की रिहाई का हुक्म दे दिया। अब सुनिए जो जुमला नजर करने जा रहा हूं, अब देखता हूं चंदन पट्टी वाले आप कैसे सुनते हैं। अभी तक तो
जनाब मुख्तार जनाब मीसम को देख के कह रहे थे, क्यों भाई मीसम क्या ख्याल है, क्यों भाई मीसम क्या ख्याल है। लेकिन जैसे ही मुख्तार की जंजीरों को काटा गया, एक मर्तबा मीसम ने कहा, मुख्तार अब क्या ख्याल है। मैंने कहा था वही होगा जो मेरे मौला ने कहा है। सलाम भेजना। ये वो शख्सियतें थी जिनका मौला ने किरदारों को तामीर किया था और उस तहरीक को आगे बढ़ाया था। बहुत तवज्जो। मौला ने कहा तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा, उसके अलावा किसी की जात पर भरोसा नहीं। मौला खुद खड़े हुए हैं, शाम के इलाके से एक शख्स आया और आने के बाद कहता है, कौन है अली इब्न अबी तालिब का नाज। कहा आप इतने मुतमईन क्यों है, कहा तू कहना क्या चाहता है। कहा मैं शाम के जिस इलाके में गया, उस इलाके में मैंने ये देखा कि आपके खिलाफ इस तरह पर्दाजियां हो रही हैं, आग उगली जा रही है। आप अपने मुतमईन कैसे, आप तो मजहर नजायज हैं, आप क्यों नहीं हाथों को उठा के बद्दुआ कर देते कि जमीन फटे और सबके सब खतीब जमीन के अंदर चले जाएं। तो एक मर्तबा मौला ने मुस्कुरा के मीसम की तरफ देख, कुमैल की तरफ देख के कहा, कुमैल सुनो ये क्या कह रहा है। और उसके बाद मौला ने एक जुमला कहा, सुनाओ जुमला। मौला ने कहा कि कुमैल बद्दुआ करने की क्या जरूरत, अगर सोच ले, अगर सोच के इशारा कर दूं जमीन फटे और सबके सब खतीब जमीन के अंदर धंस जाएं। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं इंतकाम लूंगा तो वो बंदे का इंतकाम होगा। मैं मुसल्ला इबादत पर जाके जिसको अल्लाह अकबर कहता हूं, वो इंतकाम लेगा तो वो खालिद का इंतकाम होगा। नाज बर्दारी इसी को कहते हैं। बंदगी जब कमाल पर पहुंचती है तो उलूहियत नाज बर्दारी करती है। अल्लाह ने इस बंदे की लाज ऐसे रखी, इंतकाम छोड़ा खालिद के सुपुर्द। मुझे ये बताइए 1400 साल हो गए शाम के जिन इलाकों में जो खतीब तकरीरें कर रहे थे, क्या उनकी नस्लों का पता है, क्या उनकी खिताबत का पता है, क्या उनके लिटरेचर का पता है। न वो खतीब रहे, न उनकी नस्ल रही, न उनकी खिताबत रही। अली कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहे। बंदगी पर पहुंच जाता है, मेराज इंसानियत पर पहुंच जाता है। हम जिस जमाने में चल रहे हैं ये तहरीक का दरमियानी हिस्सा है। मेरा इलाज है हालांकि हाजरा पर 2-4 मिनट अगर न लूं तो शायद आखिर नहीं। ये तहरीक चली कब थी, दरवाजे पर जब आग लगाई गई उसके बाद रातों को उठ के शहजादी निकलती थी, मलका इस्मत मदीने का एक एक दरवाजा खटखटाती थी और कहती थी, अपनी फातिमा, मैं फातिमा हूं, मुझे पहचान। तहरीक वहां से शुरू हुई थी। और जानते हैं तहरीक खत्म कब होगी? शुरू हुई थी अन्नी फातिमा, मैं फातिमा हूं। खत्म कब होगी? जब खाने काबा का पर्दा पकड़ के फातिमा का आखिरी बेटा कहेगा, अनल महदी, मैं महदी हूं। आज पूरी दुनिया के हालात, जो कैफियतें हैं, जो अंदाज है, लेकिन आज भी कुछ हक वाले उसी तरह से सीना से पर खड़े हैं। मैं आपके सामने अर्ज करूं, हर जंग, हर दौर की जंग, हर जमाने की जंग जब सजाया जाता था मारिका, उसके 3 हिस्से होते थे, एक मैमना, एक मैसरा, एक कल्बे लश्कर। आपने बड़ी संजीदगी से सुना, आपका शुक्रिया। लेकिन ये माहसल 2-4 मिनट की गुफ्तगू में पूरी तकलीफ कर सकती।
3 हिस्से होते थे। और ये शुरू कहां से हुए जानते हैं? जंगे बद्र आपको याद है? जंगे बद्र में कितने थे? 313। मुकाबले पर कितने थे? 1000 या 3000? कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 3000। 2-3 रिवायतें मिलती हैं। 1000 में किया। मुबारिज तलबी हुई। उधर से 3 बहादुर मुशरिकीन की तरफ से निकले। एक का नाम था अतबा, दूसरे का नाम था शैबा, तीसरे का नाम था वलीद। एक मंजिल तक आपके जहनों को ले जाऊंगा, बहुत गौर से सुनिएगा। रसूल ने अपने लश्कर से 3 बहादुरों का इंतखाब करके भेजा। उधर से अतबा ने आवाज दी कि मोहम्मद मुस्तफा, अगर भेजना ही हो तो हमारी बराबरी के बहादुर भेजो, ऐरा को हमारे मुकाबले पर भेजो। दुश्मन थे लेकिन बराबरी चाहते। अब रसूल ने उनको वापस बुलाया। बुलाने के बाद 3 अफराद को भेजा। 3 अफराद कौन थे? सबसे पहले अतबा के मुकाबले पर जनाब हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अली इब्ने अबी तालिब। 3 उधर से आए, अतबा, शैबा, वलीद। 3 इधर से गए, हमजा, उबैदा, अली। अब मैं दोनों के रिश्ते बता दूं कि किसका रिश्ता किससे क्या था, और उस तहरीक को महसूस कीजिए जो आज भी चल रही है। हमजा, उबैदा, अली, उधर से अतबा, शैबा, वलीद। अतबा कौन? यजीद की दादी का बाप। शैबा यजीद की दादी का चचा। वलीद यजीद की दादी का कजन, चचादार भाई। रसूल ने जो मुकाबले को भेजा, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, रसूल के चचा, उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, रसूल के चचादार भाई, अली इब्ने अबी तालिब, रसूल के चचादार भाई। 3 उधर से चले, 3 इधर से गए। सबसे बड़े थे हमजा, उसके बाद उबैदा, उसके बाद अली। हमजा के सामने अतबा, उबैदा के सामने शैबा, अली के सामने वलीद। थोड़ी ही देर में किसी के गिरने की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा तो एक आवाज बुलंद हुई कि अली ने अपने सामने वाले को कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद इमाम अली मुड़े, और मुड़ने के बाद उन्होंने उबैदा को जख्म लग गए थे, उनको सहारा दिया, उन्हें सपोर्ट की। और उधर जनाब हमजा ने अतबा को असले जहन्नम भेज दिया। अब एक गुबार उठा। लड़ाइयों की हिकमत अमली ये होती है कि कमजोर हिस्से पर हमला किया जाता है। अली को सबसे कमजोर समझ रहे थे क्योंकि 24 बरस का सिन था। लिहाजा फौज जो उधर से भागी मुशरिकीन की, उन्होंने सबने अपनी अपनी तलवारें, अपने अपने नेज़े, अपने अपने भाले उठाए, सब अली की तरफ। लेकिन गए तो अली की तरफ। कोई आया तो हाथ कटा हुआ था, कोई गया तो वापस रो रहा था। गए तो बड़े जोर में थे, लेकिन वापस आए तो जो कहते हुए भाग रहे थे, उधर न जाना, उधर अली है, उधर न जाना, उधर अली है, उधर न जाना, उधर अली है। सलावत भेज दें इस्लाम की पहली जंग थी जंगे बद्र। जंगे बद्र से 3 हिस्सों में तकसीम हुई जंगें। मैमना, मैसरा, अर्द लश्कर। बहुत तवज्जो, ये सिलसिला आगे बढ़ा। उसके बाद आप देखिए बद्र में कौन था? सब फातिमा के खानदानी। यहां तहरीक किसने चलाई? अम्मी फातिमा, मैं फातिमा हूं। बद्र से जो सिलसिला शुरू हुआ था फातिमा का। अब आइए और आगे बढ़िए। बाग़े फिदक के मुतालिबे के लिए जब शहजादी गई हैं तो साथ में शहजादियों को भी लेके गई, बच्चियों को। मैं कहूंगा आप तन्हा चली जाती, इनको क्यों लेके गई? कहा सुनो, आज दीन के ऊपर वक्त पड़ा है, मैं दरबार में बोल रही हूं, कल सानिया जहरा बन के ज़ैनब बोलेगी।
یہ سلسلہ کربلا تک آنا تھا. 3 حصوں میں طاقت تقسیم ہوئی تھی بدر میں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یزید نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. فوج کے ایک حصے کو اپنے پاس رکھا, دوسرے حصے کو ابن زیاد کے پاس چھوڑا, تیسرے کو پسر سعد کے ساتھ کربلا میں بھیجا. بہت توجہ. ایک حصہ کربلا میں, دوسرا کوفے میں, تیسرا شام میں. اب آئیے آپ میرے ساتھ. بدر میں 3 حصے ہوئے تھے نا, اب کربلا کو دیکھیے. کربلا میں بھی کسی فاطمہ کے وارث کی ضرورت تھی, کسی علی کے وارث کی ضرورت تھی. فاتح بدر تھے علی, فاتح خیبر تھے علی. لہذا کربلا کے لیے جب علی کی ضرورت پڑی تو حسین نے کہا کہ اسلام کی پہلی جنگ میں میرے بابا علی نے کفار و مشرکین کو شکست دی تھی, تو میں بھی آج سب سے چھوٹے علی کا انتخاب کروں گا. لہذا کربلا کے لیے حسین نے علی کا انتخاب کیا, لیکن وہ علی اکبر نہیں بلکہ علی اصغر تھا, جس نے مسکراہٹ کے ذریعے کربلا کے مارکے کو الٹ. اب آئیے کوفے میں ضرورت تھی, کوفے میں بھی ایک علی کی ضرورت تھی, تو کوفے کی ذمہ داری حسین نے زینب بنت علی کو دی. اور آگے بڑھیں. تیسرا اہم ترین معرکہ تھا شام کا. شام کو حسین نے کامیابی کے لیے جس علی کا انتخاب کیا اس کا نام تھا علی بن حسین سید سجاد. ایک علی نے کربلا میں لشکر و شام کو شکست دی, زینب بنت علی نے کوفے میں ابن زیاد کو شکست دی, علی ابن الحسین نے شام کے معرکے کو فتح کیا. اب بڑی آسانی سے آپ سن رہے ہیں, اب ایک جملہ سن لیجئے. دربار سجا ہوا ہے, جناب زینب کو ماحول بنا کے سید سجاد کے سپرد کرنا ہے. اب 700 کرسی نشین آپ سنتے رہتے ہیں. حسین کی کامیابی کا اعلان شروع سے ہوا. جیسے ہی حر نے یہ کہا تھا ایک مقام پر کہ فرزند رسول, فرزند زہرا آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ کی جماعت کے ہوتے ہوئے کسی کا 2 رکعت نماز پڑھانا بھی جائز نہیں ہے. حر کا یہ اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ حسین جیت گئے. بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا یہ جملہ, لیکن اس کی گہرائی کو سوچتے رہیے. اب آئیے آپ شام کی طرف. 700 کرسی نشین سمیٹ رہا ہوں, معمولی لوگ نہیں تھے. کوئی امیر, کوئی کبیر, کوئی وزیر, کوئی صاحب ثروت, کوئی صاحب حکومت, کوئی صاحب اقتدار, کوئی سفیر, اس طرح کے افراد بیٹھے ہوئے. اب بہت توجہ سے سنیے گا, میری طرف توجہات ملتفت رکھیں. یزید نے تحریر کرنا شروع کی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس ملعون نے یہاں سے شروع کی. جیسے ہی وہ ایک لمحے کے لیے رکا, یزید شکن زینب ایک مرتبہ اس ملعون کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ کے کہتی ہے, پہلا جملہ سناؤں, امن العدل یبنت القا. کیا یہی عدل ہے غلام زادے؟ اور بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. کیا یہی عدل ہے غلام زادے؟ اس کے بعد جناب زینب نے کہا کہ تو اپنے اختیار کی بات کرتا ہے, اگر تجھ میں ہمت ہے تو روشن دان سے آنے والی روشنی اور ہوا کو روک کے دکھا. کسی نے کہا کہ علی کی بیٹی حسین کی بہن کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ یہ اپنے اختیار کی باتیں ابھی کر رہا تھا, ہمارا اختیار دیکھنا چاہتا ہے. دیکھ ہمارا اختیار. ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے کہا, اس کو تاریخ گواہ ہے
जैसे ही कहा खामोश हो जाओ, अरबाब हुकूमत खामोश, अरकान हुकूमत खामोश, यहाँ तक के अस्तबल में बंधे हुए जानवरों के गले में पड़ी हुई घंटियां भी खामोश हो गई। ये जनाब ज़ैनब का किरदार। जनाब ज़ैनब ने यजीद को उसके दरबार में इस तरह से शिकस्त दी। अरब, आप जानते हैं कयाफा शनास होते थे। जनाब ज़ैनब ने अपने लहजे के ऊपर अपने बाबा का लहजा कूफे में भी हो रहा था, शाम में भी हो रहा। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने जलाल जमाल कमाल अली के साथ खुतबा देना शुरू किया तो लहजे की ताक न लाके जो नशिस्तों पर बैठे हुए थे वो अफराद खड़े हो गए और उसमें से एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से कहा, अमीर का दरबार, तर्जुमा करो, डिक्टेटर का दरबार, जालिम का दरबार, और उसके दरबार में एक रसम बस्ता खातून था, इस तरह से लताड़ था। उसने कहा ये क्या मामला है, ये काम या तो अली कर सकते हैं या अली की बेटी कर सकती है। जनाब ज़ैनब ने अपने बाबा का लहजा ओढ़ के अपने लहजे के ऊपर यजीद को शिकस्त दी और उसके बाद पूरा मार्का सैयद सज्जाद के सुपुर्द कर। सैयद सज्जाद ने मस्जिद उमवी में बनी काम की। खतीब बैठा हुआ, मैं तफसील में नहीं आऊंगा, सिर्फ इशारे इशारे खत्म कर रहा हूँ बात। जिल्ली या यजीद मुझे भी इजाजत दे ताकि मैं भी इन लकड़ियों के टुकड़ों पर जा सकूं। गए, वो सब आप सुनते रहते हैं खुतबा। यजीद को सैयद सज्जाद की तकरीर को रोकने के लिए अज़ान का सहारा लेना पड़ा। जैसे मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, सैयद सज्जाद ठहर गए और इसके बाद जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब यहाँ पर जंजीर भरे हाथों में काट हुई, जंजीरों की छनकार से मस्जिद उमवी में खामोशी तारी हुई। सैयद सज्जाद ने कहा खतीब खामोश हो जा, एक बता ये अज़ान में तेरे जग का नाम लिया जा रहा है या मेरे जग का नाम लिया जा रहा है? और अगर ये तेरे जग का नाम है फकत कज़बता व कफरता, तू झूठा भी है, तू काफिर भी है। अब सरकारी रईसुल वाइज़िन का एक जुमला कहने को जी चाह रहा है, वो भी इस मजलिस में शामिल है। सरकार पढ़ते थे कि जो 2 उंगलियों से खैबर के दरवाजे को उखाड़े उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। जो 3 दिन की भूख और प्यास के बावजूद मैमना को मैसरा पर पढ़ दे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। जो अपनी निगाहों के ऊपर लश्कर कूफा और शाम को रोके उसे अब्बास इब्न अली कहते हैं। और जो जंजीर बंधे हाथों से लश्कर शाम को उलट दे उसे अली इब्न हुसैन सैयद सज्जाद कहते हैं। सैयद सज्जाद ने जंजीर बंधे हाथों से पूरी हुकूमत को, ये था वो पैगाम जो बद्र से शुरू हुआ। आज भी वही 3 मार्के हैं, एक मैमना, एक मैसरा, एक फर्द लश्कर। आज कौन है मैमना पर? अभी मौलाना ने हदीस सुनाई थी, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। उस जमाने में कल्ब लश्कर अली के पास था। मैमना कभी हमला होते थे, कभी दूसरा कोई अहले बैत के खानवादे के अफराद में से हुआ करता था। आज जब वो तहरीक आगे बढ़ी जिसको शहजादी ने आगे बढ़ाया था, तो अब जो मैमना की तरफ नजर उठा के देखा तो वही फातिमा का एक बेटा जिसको खामेनाई कहा जाता है। मैसरा को देखा तो सीस्तानी अब थी कल्ब लश्कर की मंजिल का मैमना व खामेनाई, मैसरा व सीस्तानी। कल्ब लश्कर को कौन संभालेगा? तो लुबनान की पहाड़ियों से एक सैयद अरब ने आवाज दी, मैं हूं सैयद नसरुल्लाह।
संभालूंगा। मसाइब से पहले जुमला अर्ज कर दूं, यहूदियत 1400 साल पहले जो मेरे मौला ने खैबर में उनकी नाक रगड़ी थी, उसका जख्म आज भी लिए हुए पूरी दुनिया में तबाह करते हैं। अक्सर देखिए व्हाइट हाउस के सामने या किसी पार्लियामेंट के सामने स्लोगन लेके खड़े हो जाते, खैबर हमारा है, हम मजहब के वारिस हैं। एक जमाने में महसूस हुआ कि हुकूमत के अफराद खैबर के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि खैबर यहूदियों को सौंप देना चाहिए, उसके इंतजाम को, उसकी देखरेख को, आसार कदीमा के इस हिस्से को यहूदी अपना समझ के संभाले। जैसे ही सुबह हुई, जो रात की पहाड़ियों से कल्बे लश्कर को संभालने वाले अरब के उस शेर ने एक मरतबा बुलंदी से आवाज दी, सुनो, अनबना तो रसूल खुदा, अनबना तो हसन मुत्तबा, अनबना तो फातिमा तो ज़हरा, मैं रसूल का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं हसन का बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। ए यहूदियों, अगर तुम मजहब के वारिस हो तो मैं अली के वारिस हूँ। हाय हाय, अगर तुम मजहब के वारिस हो तो मैं अली का वारिस हूँ। खैबर जब से फतह हुआ तब से उसका जो फातिह खैबर था, करबला जब से फतह हुई करबला उसकी जो फातिह करबला, तो आज भी वो तहरीक चल रही है, लेकिन उस तहरीक की जिम्मेदारी हमारी, उस तहरीक की जिम्मेदारी आपकी। आप उस तहरीक को उलमा की सरपरस्ती में किस तरह से आगे बढ़ाएं। याद रखिए, उलमा की इसारे सवाब की मंडिस है, लिहाजा उन्हें बड़ी आसानी से संजीदगी के साथ ये बातें आपके सामने रख की, और इसके ज्यादा बहुत गुंजाइश नहीं है कि मैं अर्ज कर सकूं, लेकिन हाँ दुआ तो कर सकते हैं। आज जो हालात है, परवंदाने इंकलाब, क्या कैफियत है, क्या अंदाज है, क्या शान है, लेकिन याद रखिएगा उलमा को समझने की जरूरत है, मारिफत की जरूरत है। मैंने इब्तिदाई मजलिस में अर्ज किया था कि आलिम की पहचान लिबास से नहीं होगी, उसके इल्म और उसके किरदार से होगी। और अगर लिबास के जरिए से कोई शख्सियतों को पहचानने की कोशिश करता है, तो दुनिया का बहुत बड़ा वाकया है जब कूफे में लोग हुसैन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लिबास के धोखे में आए। अब जो पर्दा हटा तो इब्न ज़ियाद निकला। उनकी कमी क्या थी? क्योंकि उन्होंने नायब इमाम को छोड़ दिया। जो नायब इमाम को छोड़ देता है वो इमाम तक नहीं पहुंच पाता। हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, मोमिन ये गुमान न करे, लोग ये न सोचें, ये महसूस न करें अगर वो ईमान ले आए हैं तो इतना काफी है। ईमान के साथ साथ आजमाइश जरूरी है। एक माँ की इसारे सवाब की मजलिस है, एक बाप की इसारे सवाब की मजलिस, उलमा की इसारे सवाब की मजलिस। अभी चंद दिन पहले मैं जन्नतुल बकी में था, तो दिल रोने लगता है। शहजादी की उजड़ी हुई कब्र, मासूमीन की बेसाया कब्रें, आप अंदाजा तो लगाइए, आप सोचिए तो, आप उसकी अजियत को महसूस कीजिए। वो जिस्म के कातिल थे, ये रूह के कातिल थे। वहां जाके आप जियारत नहीं पढ़ सकते, करीब खड़े नहीं हो सकते, सलाम नहीं कर सकते। आज भी ये कैफियत, ये अंदाज, रूह फातिमा गिरिया को ना होगी, पर क्या कैफियत होती होगी जब करबला मोहल्ला में जाके रूह फातिमा देखती है। मौलाना ज़ैनुल रज़वी साहब ने अपनी मजलिस में एक वाक़या पढ़ा था। डेनमार्क के डॉक्टर फैमिली, वो मजहब हक कबूल करने के बाद मशहद मुक़द्दस आई थी एक फैमिली डेनमार्क की।
انہوں نے پڑھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شیعت کیوں اختیار کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم فیملی کے ساتھ گاڑی سے کہیں جا رہے تھے تو ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سائڈ کے دروازے کے پاس بچی بیٹھی ہوئی تھی، وہ پوری طرح سے کچل گئی۔ جب ہم اسے ڈاکٹر کے یہاں لے کے گئے تو ڈاکٹرز نے کہا اس کی پسلیاں اتنی ٹوٹ چکی ہیں کہ اب اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا، جتنی آپ خدمت کر سکتے ہیں، درد کی گولیاں، درد کے انجیکشن، امین کے انجیکشن دیں گے، جتنی اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے اب آپ اس کا انتظار کیجیے۔ وہ لوگ اپنی بچی کو گھر پر لے آئے اور انتظار کرنے لگے، درد کا انجیکشن لگا دیتے تھے تاکہ درد نہ ہو۔ پڑوس میں ایک ایرانی فیملی رہتی تھی، ایرانی خاتون عیادت کے لیے جب گھر میں آئی تو اس بچی کی ماں لپٹ گئی اور لپٹنے کے بعد کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اگر میری بچی کو صحیح کر دے، میری پھول سے بچی کو، تو ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اچانک اس ایرانی خاتون نے، اس شیعہ خاتون نے اس عیسائی خاتون سے کہا کہ جہاں دنیا کے ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں وہاں ایک طبیب ایسا ہے جو تیری بچی کو صحیح کر سکتا ہے، کہ جلدی بتاؤ وہ کون ہے جو اس حالت میں بھی میری بچی کو صحیح کر سکتا ہے۔ کہ وہ جا کے نہیں آئے گا بلکہ سب کے سب اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جو بھی عبادت کرتے ہو بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد کربلا کا رخ کر کے سکینہ کا واسطہ دے کے دعا مانگو، حسین کا واسطہ دے کے دعا مانگو، اے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ہماری بچی کو شفا چاہیے۔ اب ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اس ایرانی خاتون نے اس روحانی انداز سے کہا کہ ہمارے سب گھر والے بچی کو چھوڑ کے یہی دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ ایرانی خاتون خود مصلی لے کے بیٹھ گئی اور مدینے کا رخ کر کے کہتی تھی شہزادی میری عزت کا معاملہ ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ دعائیں کر ہی رہے تھے، رات کا ایک پہر گزرا کہ اچانک کسی نے بآواز بلند کہا کہ ارے بچی ٹھیک ہو گئی۔ بچی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب وہ بچی کے ارد ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ جب سب گھر والے اس کے قریب پہنچے اور پوچھا بیٹا تم کیسے صحیح ہوئی، یہ کیا ہوا، کیسا معجزہ ہوا؟ تو اس بچی نے کہا جب آپ لوگ مصروف دعا تھے، جب گڑ گڑا کے وہ پڑوس کی ایرانی خاتون دعا مانگ رہی تھی، اسی وقت ایسا محسوس ہوا کہ کالا لباس پہنے ہوئے خاتون میرے قریب آئی اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا بیٹا تیری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا بیٹا پسلیوں کے درد کو مجھ سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے، اس پسلیوں کی تکلیف کو مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، میری بھی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یہ کہہ کے ہاتھ کو آگے بڑھایا، میری پسلیوں کو پھیرا، ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کوئی تکلیف کبھی تھی ہی نہ، میری پسلیوں کا درد ختم ہو گیا، میری تکلیف ختم ہو گئی، میری پسلیاں جو ٹوٹی ہوئی تھی وہ آپس میں جڑ گئی۔ میں کہوں گا شہزادی چاہنے والی نے آواز دی تو آپ آ گئی، لیکن ہائے کربلا کی سکینہ جب اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، کبھی تماچے مارے جاتے تھے، کبھی تعزیانے لگائے جاتے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ سنیں گے آپ جنگل میں تڑپ رہی تھی، اب دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے، میر حدیث نے کہا جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا با مصیبتہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چار چار پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اب میر صاحب آگے کہتے ہیں کہ پردہ ہٹا کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزا قدم خمیدہ کمر زخم خون جگر، ارے چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے سر اپنا پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر؟ اور اس کے بعد جناب زینب نے کہا
अम्मा कदम अब उठते नहीं तशरा काम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के। ज़ैनब चारों तरफ देख रही थी, जब कहीं माजाया नजर न आया तो टीले बगई आवाज दी, मेरे भैया कहाँ हो? एक नशेब में देखा तो शिमर का खंजर है, हुसैन की गर्दन है। अब बंद सुनिए, मीर अनीस ने कयामत कर दी। अम्मा कदम अब उठते नहीं तशना काम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के। अब जब जनाब ज़ैनब ने इस कैफियत को देखा कि मेरे भैया की गर्दन, शिमर का खंजर, तो एक मर्तबा ज़ैनब ने वहीं से आवाज दी, ऐ शिमर तुझको रूहे पैगंबर का वास्ता, ऐ शिमर तुझको हैदर सफदर का वास्ता, ऐ शिमर तुझको नन्हे से असगर का वास्ता, ऐ शिमर तुझको रूहे पैगंबर का वास्ता। उसके बाद मीर साहब कहते हैं, लिल्लाह करना ज़िबहा शहर तशना काम को, लिल्लाह करना ज़िबहा शहर तशना काम को, मैं भीख मांगती हूँ मुझे दे इमाम को। उसके बाद जब 11 मुहर्रम को ज़ैनब मक्तल में आई है और कुचले हुए लाशों को देखा है तो 3 जुमले हैं। अब सीने पर हाथ रख के सुन लो, मजलिस खत्म होने जा रही है। जनाब ज़ैनब ने 3 जुमलों में कयामत कर दी, ये पूरा मरसिया है। जनाब ज़ैनब ने अपने भैया को, अपने माजाए को देखा, कटी हुई गर्दन को देखा, तो पहला जुमला का ऐना वासुका याखी, ए मेरे भैया तेरा सर कहाँ है। दूसरा जुमला ऐना लिबासुका याखी, ए मेरे भैया तेरा लिबास कहाँ है। तीसरा जुमला ऐना अमामू का याखी, ए मेरे भैया तेरा अमामा कहाँ है। फिर वही जुमला दोहराया ज़ैनब ने, अंताखी, ए मेरे भैया ना तेरा। आखिर ज़रा हज़रात से इल्तिमास और दरख्वास्त है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर खतीब अहमद मौलाना मुर्तज़ा जाफरी साहब को, मरहूमा सैयद अज़ीज़ खातून साहिबा रिसाल वाइज़ीन मोहम्मद अली साहब, खतीब मौलाना अस्करी साहब और मौलाना करना साहब कोई साल